It's welcome to my channel Tansuman Classes, and today we read chapter number 2. Chapter number 2 in history. The name of the chapter is From Threat to Territory. So the company established power in India. How they established their power. So I am Suman ma'am. Today welcome to all in my channel Tansuman Classes, and we read about the company rule, how they expand their rule. Before we start the chapter, like and subscribe my channel because you get more videos from my channel, so you get more videos. So let's start the chapter. The chapter is, you must know in this chapter how the British came to India and how they expand company rules after the Battle of Plassey, 1757, and how they became strong in political and economical way. यानी जो भारतीय हैं उन पे अंग्रेजों ने जो अपना साम्राज्य फैलाया, तो वो किस तरीके से फैलाया और किस तरीके से वो राजनीतिक और आर्थिक तौर पे मजबूत होते चले गए. So let's start the topic. If we analyze the process of the annexation of the Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain decayed umbrage, and the company really launched a direct military attack on unknown territory. Instead, it is used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. यानी जो एनेक्स करते थे वो लोग, बिफोर एनेक्सिंग जो इन्फ्लुएंस करते थे इंडियन किंगडम्स को, उनके पास क्या क्या था कि अब उनको ऐसा लगा कि इंडियन जो स्टेट्स हैं इनको अगर हम अपने एनेक्स में लेते हैं तो उससे पहले इनको क्या करना है, इनको यानी वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे. क्यों? क्योंकि अब इनको सिर्फ मिलिट्री अटैक से नहीं, इनको टेरिटरी जो है वहाँ पे दूसरे टेरिटरीज बनाने के लिए भी इनको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाने पड़ेंगे. यानी वो राजनीतिक, आर्थिक और जो चालाकियाँ उनके पास थी उनको वो अपना रहे थे. After the Battle of Buxar, 1764, the company appointed residents in Indian state, and they were political or commercial agent at their job. यानी वॉज टू सर्व अ फर्दर एंड इंस्ट्रेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वो काम करते थे और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से बनाए हुए जो रेजिडेंट्स थे, इंडिया में छोड़े गए थे, जो उनका काम ही सिर्फ कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट बनकर काम करना था. So thought the resident, the company official began interfering in the internal affair of Indian state. और अब वो कंपनी जो है वो इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर में भी हस्तक्षेप कर सकते थे, यानी वो कभी भी इंटरफेयर कर सकते थे. दे ट्राई टू डिसाइड who was to be successor to the throne and who was to be appointed in administrative post. Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. According to the term of this alliance, the Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They were to be processed by the company. यानी कि अब जो राज्य के भीतरी जो हमारे इंडियन स्टेट हैं, उन राज्यों के भीतरी मामलों में भी अब उनका इंटरफेयर होना शुरू हो गया था, यानी उनका दखल देना शुरू हो गया था. अब अगला राजा कौन होगा? वो भी किसको बैठाया जाएगा, यानी अगला राजा कौन होगा, हु वॉज टू बी अपॉइंटेड, अब राजा किसको बनाया जाएगा, ये भी कंपनी के अब चीफ जो अफसर होते थे वो तय करना चाहते थे. एंड कंपनी की सहायक संधि उन पे थोप दी गई थी. कंपनी की जो इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स है वो अब राजा नहीं रख पाएगा, यानी अब वो कोई भी अगर वो सेना रखता है तो बिफोर उसको कंपनी को इजाजत लेनी पड़ेगी. had to pay to the subsidiary force and that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of the territory was taken away as plannedly. And for example, when Richard Wesley was Governor General, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. Hyderabad was also forced to decay territories on similar ground. यानी अब जो सेनाएं रखी जाएंगी वो भी कंपनी के द्वारा रखी जाएंगी, और कंपनी में ऐसा था
कि अब कंपनी की बिना इजाज़त के, यानी कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, सब्सिडरी फोर्स मिलती थी उनको, और साथ ही साथ में अब जो मेंटेन करेगा कौन, जो सहायक सेना रखी जाती थी, भारतीय शासक उसकी अदा करेगा कीमत, यानी सपोज टू मेंटेन, यानी अब जो सेना रखेगा राजा, उसका खर्चा भी वो जो इंग्लिश मैन्स जो सेना रखते थे उसका खर्चा भी अब राजा को उठाना पड़ेगा। और इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई राजा उसकी रकम देने में चूक जाता था या फेल हो जाता था, सो द पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन बाय द प्लांटी, और अब क्या करती थी, जुर्माने के तौर पे, प्लांटी यानी जुर्माना, उन पे जुर्माने के तौर पे अब वो क्या करेगी, उस कंपनी उसके कब्जे में ले लेगी, किसके, उसके टेरिटरी को कब्जे में ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिचर्ड वेस्ले जब गवर्नर जनरल बन के आए थे इन 1798 1805, द नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब जो हैं उनको फोर्सफुली करा गया कि अब जब नवाब ने सेना को पैसा अदा करने में वो चूक गए, कहीं ना कहीं वो फेल हो गए उसको देने में, तो अब क्या हुआ, उनके आधार पर हैदराबाद में का इलाका जो है, हैदराबाद जो है वो अब नवाब से छीन लिया गया। तो ये क्या था, अपने बेटों, नवाब सिराजुद्दौला जो है, देखिए साइड के पोस्टर में आपको दिखाया हुआ है कि नवाब सिराजुद्दौला जो हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है वो खड़े हैं और ब्रिटिश रेजिडेंट्स के साथ खड़े हैं, और दोनों की लड़ाइयों के बीच में सिराजुद्दौला का अधिकार छीन लिए गए, लेकिन रेजिडेंट्स अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, ये लोग कितने खुश हो रहे हैं, देखिए कि उनकी ताकत को कैसे छीना जा रहा है। सो द नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध was his son and the British residents painted by the टेलीकैटल ऑयल, यानी टेलीकैटल के द्वारा ये बनाई गई ये पेंटिंग जिसमें कि सिराजुद्दौला के अधिकार छीने गए। तो ये कितने प्राउडफुली ये ऐसी पिक्चरें, पेंटिंग्स जानबूझ के बनाते थे ताकि दूसरे लोग इसको देखें और उनको उस कंपनी की पावर का पता चले। सो रेजिडेंट्स की ताकत क्या होती थी, व्हाट पावर डिड द रेजिडेंट्स हैव, उनके पास क्या पावर थी। दिस इज वॉट जेम्स मिल, द फेमस इकोनॉमिस्ट, जो हमने पहले जेम्स मिल के बारे में पढ़ा था कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, ये पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और स्कॉटलैंड से आए हुए थे, जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था। एंड रॉट अबाउट द रेजिडेंट्स अपॉइंटेड बाय द कंपनी, और इनको बड़ा शौक था कंपनी के, बड़ी तारीफ करते थे ये और कंपनी के बारे में अधिकतर लिखते ही रहते थे। तो इसमें क्या लिखा है, वी प्लेस रेजिडेंट्स हु रियली द किंग ऑफ द कंट्री, वैट एवर injections of the non-interference he may be under, as long as the prince act in the perfect supervision and does not have to be the agreeable to the resident, that is to be British government, things go on quietly, so they are managed without to the residents appearing much as in the administration of affairs, but when they in the different nature of happen, the moment of prince take a course which was the British government think wrong, then come clashing and disturbance, यानी जो अब हस्तक्षेप करना चाहते थे ये, वो हस्तक्षेप ये छूट दे देते थे किसी में भी अगर, तो इसमें क्या कर लिया था, रेजिडेंट्स यानी ब्रिटिश जो माफिया है, जो माफिक काम करते थे, ब्रिटिश जो कंपनी की तरफ से जो काम करते थे, ये चीज़ें बड़ी आराम से चलती रहती थी उनके हिसाब से, और दखल अंदाजी के बिना उन्होंने ये भी वॉर्न करने की कोशिश करी हमें कि अगर आप हमारा कहना मानते रहेंगे तो चीज़ें क्वाइटली चलेंगी, लेकिन अगर आप रेजिडेंस अपेयरिंग के काम में कहीं दखल देते हैं तो फिर दखल अंदाजी के आपको इसका कुछ ना कुछ हर्जाना, कुछ ना कुछ अलग घटता रहेगा, और राजा को ऐसे रास्ता अपनाना चाहिए कि ब्रिटिश गलत ना मानती हो और टकराव और उथल पैदल ना हो। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से मानती थी कि क्लैशिंग और डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो अंग्रेजों का कहना मानता रहे। यानी आप ये भी देखिए कि इनडायरेक्ट वे में वो लोगों को, वो वहाँ के नवाब, वहाँ के राजाओं को अपने अंडर में रखना चाहते थे। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि टीपू सुल्तान है वो टाइगर थे, कहाँ के, मैसूर के। तो उनमें ऐसा क्या था, सो द कंपनी रिस्टोर्ड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फर्मेशंस
confirmation when it saw as a threat that it is political or economic interest. यानी अब कंपनी को जो राजनीतिक जो आर्थिक हित और राजनीतिक और आर्थिक हितों की खतरा दिखाई दे रहा था, उनको किस चीज से खतरा दिखाई दे रहा था, थ्रेट, उनको खतरा दिखाई दे रहा था राजनीतिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पे किससे दिखाई दे रहा था, टीपू सुल्तान. So this can be illustrated with the case of southern India state of Mysore, जो कि दक्षिण भारतीय साउथर्न इंडिया का एक स्टेट था, वो था मैसूर. यानी अब ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा था, और वो किससे, मैसूर से. और मैसूर में कौन था, मैसूर हैड grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali and his famous son Tipu Sultan. और हैदर अली जो 1761 से 1782 में रहे, और उनके फेमस बेटे महान जो थे टीपू सुल्तान, उनसे कहीं ना कहीं कंपनी को डर था. क्या डर था, मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट व्हेन द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम. आप ये देखिए, मैसूर को बहुत प्रॉफिट, मैसूर जो कंट्रोल था वो इनके पास था, टीपू सुल्तान के पास में, और मैसूर के ट्रेड से यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था. और व्हेन द कंपनी परचेज, क्या खरीदती थी कंपनी, पेपर एंड कार्डमम, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी. और अब इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड. और टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान स्टॉप कर दिया क्या चीज, सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रूआउट द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम. यानी उन्होंने सैंडलवुड, चंदन जो होता है वो, और पेपर, काली मिर्च, और कार्डमम, इलायची, उन्होंने अपने पोर्ट से उसका व्यापार बंद करने के लिए कहा, बिकॉज ऑफ द लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, क्योंकि डिसअलाउ कर दिया उन्होंने. यानी उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी, किसको, वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उनको अंग्रेजों के साथ, कंपनी के साथ ट्रेड करने की अनुमति नहीं दी. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया. और टीपू सुल्तान के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे फ्रेंच लोगों के साथ में, फ्रेंच उनके एक फ्रेंड भी थे. सो द मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प. और उनकी हेल्प से टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को मॉडर्न कर लिया, यानी आधुनिक तौर पे उन्होंने अपनी जो सेना है उसको मॉडर्नाइजेशन देना शुरू कर दिया. तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को खतरा महसूस हुआ कि अगर टीपू सुल्तान की ताकत बढ़ जाती है तो टीपू सुल्तान हमारे अंडर में नहीं आएंगे, और आगे आने वाले टाइम में वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहे थे. सो द ब्रिटिश वॉज द फ्रीशियस, यानी फ्रीयस, उनको बड़ा फ्रीशियस हुए न लगे, वो बड़े भयभीत हुए उनको. एंड दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस एंड एरोगेंट एंड डेंजरस. उनको ये लगा, वो उनको कहीं ना कहीं डर लगा, और क्या लगा कि ये बहुत महत्वाकांक्षी है, एरोगेंट है, उन्होंने ये कहा, और साथ ही साथ बहुत डेंजरस हैं, यानी बहुत ही एम्बिशियस यानी बहुत ही महत्वाकांक्षी, एरोगेंट यानी बहुत ही घमंडी, और साथ ही साथ डेंजरस हैं. कौन है खतरनाक, टीपू सुल्तान और हैदर अली. सो रूल्स हु हैड बीन टू बी कंट्रोल एंड क्रश, जिसके की रूल को वो कंट्रोल और क्रश करना चाहते थे, नियंत्रण रखना चाहते थे उसके ऊपर, और उसको दबाना चाहते थे. सो 4 वॉर वॉज फॉट विद द मैसूर. इसीलिए इनके 4 युद्ध हुए मैसूर के साथ, जो कि 1767 से 69 तक चला. दूसरा जो है 1780 से 84 तक चला. तीसरा जो है वो 1790 से 92 चला, एंड लास्ट 1799 तक चला. So only in the last, the battle of Srirangapatnam, जो battle of Srirangapatnam थी, did the company ultimately win a victory of Tipu Sultan was killing, defending his capital Srirangapatnam. यानी जो उनके 4 एंग्लो जो युद्ध हुए थे ब्रिटिशर्स के साथ मैसूर के, ये जो लास्ट युद्ध था 1799 श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में
कंपनी को सफलता विक्ट्री हासिल हुई और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वर्डियार as the ruling density of Wadiyars and subsidiary alliance was imposed on the state और अब स्टेट में जो क्या कर दिया गया, स्टेट में जो पुराने वोडियार राजवंश थे उनके हाथों में सत्ता सौंप दी गई और मैसूर के साथ एक सब्सिडरी अलायंस, एक सहायक संधि करी गई। अब सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि थी कि उनको वो सब खर्चा जो है वो उठाना पड़ेगा और साथ ही साथ में टीपू, द लीजेंड ऑफ टीपू, टीपू के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। किंग वर ऑफ्टन सराउंडेड बाय लेजेंड, देयर पावर्स ग्लोरिफाइड थॉट folklore. There is a legend about Tipu Sultan who became to the ruler of Mysore in 1782 और ये आप लोगों को बहुत पता होगा कि यशगान गाया जाता है, एक लीजेंड थे ये और उनकी ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। लोग बड़े इनके बारे में गाते हैं, सुनाते हैं कि टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार अपने फ्रांसीसी दोस्त, कौन, ही वेंट हंटिंग टू द फॉरेस्ट विथ हिज फ्रेंच फ्रेंड, ये अपने एक फ्रांसीसी फ्रेंड के साथ, देयर ही केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, इनका सामना एक फेस टू फेस एक टाइगर से हुआ। हिज गन डिड नॉट वर्क और इनके जो फ्रांसीसी फ्रेंड थे उनकी गन काम नहीं कर रही थी। हिज डैगर फेल इनटू द ग्राउंड और वो जमीन पर गिर गई थी। कटार भी, जो उनके कटार थी वो भी जमीन पे गिर गई थी। एंड ही बैटल विद द टाइगर अनआर्म्ड until he managed to reach down and pick up the dagger। और जब तक टीपू निहत्ते ही शेर से मुकाबला करते गए और आखिरकार जब उन्होंने कटार को उठाया, अंत में इन्होंने शेर को मार गिराया। He was able to kill the tiger in the battle। After that he came to be known as the Tiger of मैसूर और इसके बाद इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। और he had to image of the tiger on his flag also और इनके झंडे पर भी, इनके जो राजशाही झंडा जो होता है उसमें भी टाइगर जो है उसकी उन्होंने चित्र लगाया, उन्होंने उसकी तस्वीर होती है उनके जो भी झंडे थे। So this picture is captured and साइड में फिगर नंबर 10 दे रखा है। This is a picture of a big merchant's toy, जो एक बहुत बड़ा मैकेनिकल टॉय है। This the Tipu posed. You can see a tiger mellowing the European soldiers when he handle was turned. The toy tiger roared and the soldiers striked and the tiger toy was now kept in the Victoria Albert Museum in London। और ये जो टाइगर टॉय है ये लंदन में रखा गया है। The British took it away when Tipu Sultan died, defending his capital Srirangapatnam on 4th May 1799। और जब श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो अंग्रेज ये खिलौना अपने साथ लेके गए और इस अंग्रेजों ने इस खिलौने को विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम में रखा जो कि लंदन में है। ये टॉय जो है बेटा ये एक नकली शेर का है जिसमें कि यूरोपीय सिपाही को देखिए आप दबाया हुआ है किस तरीके से, और ये नकली शेर दहाड़ता भी है और सिपाही जो नीचे लेटा हुआ है उसके अंदर से चीखों की आवाज़ आती है, चीखों की जो आवाज़ें आती हैं कि कैसे एक शेर खाता है उसको इसका कोई बटन दबाने से। ये बहुत ही टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही प्राउड था और किस तरीके से उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ उनका सामना किया, इसीलिए उनको शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान। एंड मराठों से लड़ाई, अ वॉर विद द मराठास, मराठाओं के साथ भी अंग्रेजों के जो मतभेद थे वो बढ़ते गए और मराठाओं की ताकत को इन्होंने काबू करने के लिए खूब कोशिश करी। तो फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट द क्रब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर, और इन्होंने काबू और उसको खत्म करने के लिए डिस्ट्रॉय, काबू करा उसको क्रब एंड द डिस्ट्रॉय, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने खूब प्रयास किए विद देयर डिफेंड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और तीसरी पानीपत की जो युद्ध हुआ था 1761 में मराठाओं को उसमें हराया गया। एंड द मराठा डीम्ड टू बी रूलर फ्रॉम दिल्ली वाज स्ट्रेच्ड, और वो दिल्ली से स्ट्रेच्ड करना चाहते थे अपनी पावर, वो कहीं ना कहीं मराठाओं का सपना चकनाचूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। एंड द मराठास ड्रीम टू बी रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज स्कैटर्ड एंड
They was divided into many states under different chiefs belonging to the dynasties such as the Sindhya, Holkar, Gaikwad, and the Bhosle. That is means these chiefs were held together in a confidentiary under a पेशवा. कॉन्फिडेंसरी यानी राज्य मंडलों, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया और प्रिंसिपल मिनिस्टर्स जो होते थे उनको पेशवा का नाम दिया जाता था. एंड ही बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हैड बेस्ड इन पुणे. और जो कि सैनिक और राज्य जो भी शासनिक राज्य प्रशासनिक कार्य होते थे वो पुणे में रहता था. एंड द महाराजा महादजी सिंधिया जो है, महादजी सिंधिया एंड नाना फंडिस was two famous Maratha soldiers as statements of the late 18th century. और महादजी सिंधिया एंड नाना फंडिस 18वीं शताब्दी के लास्ट में भी एक महान योद्धा रहे मराठाओं के. And the Marathas were subsumed in the series of war. In the first war of the ended in 1782 with the treachery of the Salibai, and there was no clear victor. और इसके बाद भी इन्होंने काफ़ी युद्ध करे, घुटने नहीं टेके. और सालभाई की जो संधि हुई थी इनके साथ में, सालभाई जो संधि हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पक्ष में किसी की जीत नहीं हुई थी. देयर वाज नो क्लियर विक्टर. कोई इसमें जो युद्ध हुआ था उसमें कोई क्लियर विजेता नहीं था. But the second Anglo-Maratha war was fought in different fronts, the resulting that the British gaining Odisha. अब जो दूसरा हुआ था युद्ध एंग्लो मराठा वॉर, उसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनको उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली. और जो दूसरा मोर्चा था उसमें इनको यमुना जो नदी है वो और साथ ही साथ उड़ीसा जो है ये इनको मिला. एंड क्रश्ड मराठा पावर, और उन्होंने मराठाओं की पावर को क्रश्ड किया. सो द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथूर नियर कानपुर विथ अ पिजन. और द कंपनी नाउ हैड अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज सच एज विद द साउथ ऑफ विंध्यास. और जब इनको पेंशन दे के जो बिठूर जो नियर कानपुर के हैं वहाँ पे पेशवा को पेंशन विद अ पेंशन दे दी गई उनको. एंड द कंपनी हैड द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द दिस लैंड दिस टेरिटरी ऑफ विंध्यास. और अब यहाँ पे कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया था. सो द क्लेम ऑफ द पैरामाउंटेसी यानी अब जो कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे सर्वोच्च है, ये सब दिखाने का दावा करने लग गई थी कंपनी. और देखिए आपको लॉर्ड हेस्टिंग की एक फोटो दिखाई जा रही है इसमें. और साथ ही साथ में नीचे है स्टैचू ऑफ द क्वीन ऑफ द किथोर इज कर्नाटका, जो कि आपको एक चेन्नम्मा, कितूर की रानी जो है चेन्नम्मा की है ये मूर्ति. तो इसमें क्या है, इट इज क्लेम टू द पैरामाउंटेसी. It is clear from the above of the from early 19th century the company pursued as an aggressive policy of the terrestrial expansion and under Lord Hastings. अब जो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हेस्टिंग हैं ये यहाँ पर आए और 1813 से 1823 तक इन्होंने अब इसको शुरू कर दिया था. और इसमें एक नई नीति बनाई. इसके लिए था कि भारतीय राज्यों के ऊपर उनका दावा था और भारतीय रियासतें अधिग्रहण करनी उन्होंने शुरू कर दी थी. अ न्यू पॉलिसी, और पॉलिसी क्या थी, अ न्यू पॉलिसी ऑफ द पैरामाउंटेसी वॉज इंटीन, और ये चालू कर दी गई. नाउ द कंपनी क्लेम दैट द अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट ऑफ द सुप्रीम. वो अपने आप को सुप्रीम दिखाने लग गए. हैंस इट वॉज पावर टू ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट, जो कि इंडियन स्टेट से ऊपर है, सर्वोपरि है. In order it protect the interest, it was justified in annexing or threatening to annex any kingdom, यानी वो किसी भी kingdom को annex कर सकते हैं. This view of the continued to guide later British policies as well, और जो कि अंग्रेजों ने अपने आगे आने वाली पॉलिसियों में भी अपनानी शुरू कर दी थी. So this process however did not go unchallenged, जिसको कि हम अनचैलेंज नहीं कर सकते. बेडॉक टॉक यानी अब कंपनी है जो कुछ भी कोई भी कंपनी को चैलेंज नहीं कर सकता. सो फॉर एग्जाम्पल वैन ऐसा कुछ नहीं था, कुछ लोगों में आज भी वो चीज़ थी, वो चैलेंज करते थे.
तो वो कौन थे? व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सारे ही बेरोक टोक वो अंग्रेज अपना काम करते रहेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लोग खड़े भी हुए थे, उन्होंने प्रयास भी किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। उनमें से एक था कितूर, यानी कितूर की जो कर्नाटक में है, वहाँ की रानी चेन्नम्मा। उन्होंने इसके खिलाफ हथियार उठाए थे कर्नाटका जो आज है। रानी चेन्नम्मा टुक द आर्म्स टू लीड एन एंटी ब्रिटिश रेजिडेंस मूवमेंट, और इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824, और वो 1824 में अरेस्ट करी गई और उनको प्रिजन में डाल दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया 1829 में। और बट रानीमा वॉज अ पुअर चौकीदार, और साथ ही साथ में वो वहाँ पे ख़त्म हो गई 1829 में, प्रिजन में ही ख़त्म हो गई। बट जो गरीब संगोली के, जो चेन्नम्मा के कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार थे, और चौकीदार कौन थे? रायना एज अ पुअर चौकीदार जो थे संगोली कित्तूर के, वो वहाँ पे उन्होंने ये मोर्चा संभाला। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स टू द रिकॉर्ड एंड ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1830, और 1830 में उनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। You will read more about the several cases of the residence letters in this book, और आप ये भी इनमें ये भी पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको कि कैसे अंग्रेजों ने लोगों को ऐसे बर्ताव करना शुरू कर दिया था, ऐसे लोगों को मारना शुरू कर दिया था। So in the latter 1830s, the East India Company became worried about Russia. अब आप ये देखिए, कंपनी को लगा था कि टीपू सुल्तान की पावर बढ़ रही है, टीपू सुल्तान बहुत एरोगेंट है, टीपू सुल्तान बहुत पावरफुल है, अब वो उनके कंट्रोल में नहीं है, और फ्रांसिस से उनको डर था। तो अब क्या है, रशिया से भी उनको डर लगा, उनको कहीं ना कहीं जो रूस की कंपनी है उससे बहुत डरी हुई थी। तो अब क्या किया, कंपनी को भय था कि कहीं ना कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में ना फैल जाए, उत्तर पश्चिम से ना फैल जाए। तो रशिया को, एशिया को उन्होंने एंटर करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी नॉर्थ वेस्ट से रशिया इंडिया में एंटर ना कर जाए, इसलिए उन्होंने ड्राइवन बाय दिस फेयर, इस वजह से, इस डर की वजह से द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट। इसी वजह से अब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। एंड दे फॉट अ पैरालॉन्ग वॉर ऑफ द अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842, और इसीलिए इन्होंने इस डर की वजह से अफगानिस्तान के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और फिर साथ ही साथ स्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी, और वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने अपनी कंपनी के रूल वहाँ पे स्थापित कर दिए। एंड सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। नेक्स्ट इन द लाइन वॉज पंजाब, जो कि दूसरा नाम पंजाब का था। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, वहाँ पे उस वक्त कौन थे? उस वक्त थे महाराजा रंजीत सिंह, जो कि कंपनी, यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का दाल नहीं गलने दी उन्होंने कंपनी को स्थापित ही नहीं होने दिया वहाँ पर। इतनी पावर थी रंजीत सिंह में। ये देखिए, रंजीत सिंह जी का फोटो दे रखा है आपको इसमें। तो रंजीत सिंह आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर वर फॉट विद द सिख, और उनकी मृत्यु के बाद में सिखों के साथ में दो प्रमुख युद्ध हुए, जो कि 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड, और अब 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अपना अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था, उसको भी एनेक्स कर लिया था, उसको भी अपने अंडर में ले लिया था। सो द डैक्टोराइन ऑफ लैप्स। अब डैक्टोराइन ऑफ लैप्स क्या था? एक विलय की नीति थी ये, एक जिसमें कि उन्होंने एक तरीका अपनाया, उनका एक ये बहुत कूटनीतिक तरीका था कि कैसे किसी राजा के अगर उत्तराधिकारी नहीं होता है तो कैसे वो लैप्स हो जाएगा। सो लेट्स रीड द फाइनल वेव ऑफ द एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के अंडर में ये एक जो लहर थी वो आई, और कैसे एक अधिग्रहण करा गया। आपको पता चलेगा कि इन्होंने इस तरीके से भी चालें चल के भारत को अपने अंडर में करने की कोशिश करी। हु वॉज द लॉर्ड गवर्नर जनरल, जो कि गवर्नर जनरल बन के आए थे लॉर्ड डलहौजी फ्रॉम 1848 टू 1856,
and he devised as a policy that came to be known as the doctrine or plebs, जिनकी की जो नीति है, उनके द्वारा जो बनाई गई नीति थी, जिसको कि हम विलय की नीति के नाम से जानते हैं। और यह सिद्धांत ये तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसका कोई वारिस पुत्र नहीं होता, वारिस उसका कोई पुरुष नहीं होता है, तो वो रियायत अपने आप हड़प ली जाएगी। सो द रूलर्स डाइड विदाउट अ मेल हेयर, this kingdom was lapsed, and that is because a part of company territory, one kingdom after another was annexed। और ऐसे ही करते करते एक के बाद एक कई किंगडम्स अनेक्स्ट होते गए, और अप्लाइंग द डेक्टराइन, और डेक्टराइन की नीति के अनुसार कौन कौन से शामिल हो गए थे? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। यानी कोई युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ा, सीधे नियंत्रण में आ गए। सो फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। अब लेकिन जब 1856 में अवध को इन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश करी, दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। उनके साथ बहुत बड़ी बहस हुई, एक आर्ग्यूमेंट हुआ, क्योंकि दे सैड दैट वाज ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध। उनको था कि हमें हमारी ड्यूटी करनी पड़ रही है, हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए हमें अवध को अपने अंडर में करना पड़ेगा, टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नमेंट ऑफ द नवाब। और जो यहाँ के जो लोग थे, जो नवाब को बड़ा बड़ा मानते थे, वो वहाँ पे क्या हुआ? एंड्रेड बाय द ह्यूमिलेटिंग, अवध उनको ह्यूमिलेट किया गया। वे इन विच द नवाब वॉज डिस्पोज्ड, और अपने प्यारे नवाब को गद्दी से जब उनके हटाया गया, तो ये देख के लोगों के पास में क्या हुआ? द पीपल ऑफ अवध जॉइन द ग्रेट रिवॉल्ट। और ये देखकर वहाँ के लोगों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने एक रिवॉल्ट किया, और उस रिवॉल्ट को हम किसके नाम से जानते हैं? 1857 महान विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। और ये वो प्रथम चिंगारी थी जिससे कि भारतीयों को लगा कि अब हमें कहीं ना कहीं अगेंस्ट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और आप ये देखिए, मैप आपको स्टडी दे रखा है। इन 1797 ये जो येलो वाला पोर्शन है वो अंडर ब्रिटिश रूल है, और एरियाज नॉट अंडर इन ब्रिटिश रूल। अब आप ये देखिए, देखते ही देखते 1840 में, अब आप देखते ही देखिए, ये देखिए कितने 42 ईयर्स के बीच में ही इन्होंने, आप ये देखिए यहाँ पे येलो पोर्शन कितना बढ़ गया, यानी एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल। और फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये रहा 1857 में भारत की ये हालत हो गई थी कि ये जो येलो वाला एरिया है, ये सारा किसके अंडर में था? ब्रिटिश के अंडर में था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था। लेकिन ये जो दूसरा कलर आपको दिया हुआ है, डार्क कलर, ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्ट उन राजाओं को, उन मंत्रियों को यहाँ पे स्थापित किया हुआ था, जो कि उनके काम को संभाल रहे थे। तो अब आप ये कल्पना कीजिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, कैसे वो एक ट्रेड करने आए थे, और कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य को बढ़ा लिया, और धीरे धीरे देखते देखते इन्होंने अपने व्यापार को यहीं पे स्थापित कर लिया। यहीं अब वो वहाँ पे अपने देश में सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर जाते थे, यहाँ से कमाया हुआ पैसा उस तरफ क्या हुआ? मूवमेंट करने लग गया। एंड आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। आई थिंक आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। एंड don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. Good day.